The crowd is swelling, frustrated anti-government protesters. Tear gas is being shelled at the moment. Protesters here, they say they're going to lay siege to the parliament. सुलग रहा है श्रीलंका। श्रीलंका हमारा पड़ोसी मुल्क है और यहाँ पर जो हालात हैं वो भारत के लिए भी चिंता बढ़ाने वाले हैं। राष्ट्रपति के देश से भागने के बाद वहाँ पर जनता भड़क उठी है। सेना के खिलाफ भी उसकी आवाज़ें हैं क्योंकि ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि सेना ने भागने में मदद की, वायुसेना के जेट से भागे हैं, ऐसी अफवाहों का दौर है। इस सब के बीच में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा हो चुका है, प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन है, रणिल विक्रमसिंघे इस सब के बीच में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ये सब किसी भी मुल्क और किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं हो सकता है। अब जनता आक्रोश में सड़कों पर है। आर्थिक और राजनीतिक दोनों संकट बहुत बड़े हो चुके हैं श्रीलंका के सामने और ऐसे में इमरजेंसी लगाई गई है। कोलंबो के अलावा पश्चिमी श्रीलंका में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो ये जो सारी तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म के प्रदर्शन प्रधानमंत्री के आवास के बाहर भी हो रहे हैं। राष्ट्रपति और हमारी साथी श्रीजा इस वक्त में कोलंबो में हैं और इस सब घमासान के बीच में वो मौजूद हैं और लगातार अपनी रिपोर्ट्स भेज रही हैं। पुरानी संसद से कोलंबो में जो मौजूद है वहां से श्रीजा ने रिपोर्ट भेजी है, देखिए। Hours before Mr. Gotabaya Rajapaksa resigns from his position as the president of Sri Lanka, we see the protests are intensifying. In fact, Occupy Presidential Palace, Temple Trees, and also now the Old Parliament, the place that we are reporting from at the moment. The crowd is swelling. You have several of the people, in fact, lining up to view and explore what really the Old Parliament looks like. And of course, the word that's coming out of Sri Lanka at the moment from the citizens that, you know, the president has fled from the country. What's more important to know that Mr. Gotabaya Rajapaksa enjoys immunity because he is still the president, which is also a clear indication of the fact that he has not stepped down yet before leaving the country at the moment to Maldives. And we also understand that the military confirms, the defense confirms to NDTV that they were obligated to give him a plane, a military plane, for him to board and leave for the Maldives because he is still the president. Now we got the news he has escaped to the Maldives by Air Force special jet. So he's left you on the streets. Sorry, yeah. He has, we don't have the food right now, we don't have gas, we don't have petrol, we don't have diesel, we don't have anything really, we don't have dollars. So, all the poor people suffers a lot. This is the Old Parliament. Several people have already taken over the Parliament and they say that they will leave these locations once they receive a confirmation that Mr. Gotabaya Rajapaksa has already resigned from his post as the president. Now, as we walk up the stairs, now this is the crowd that's occupied the stairs of the Old Parliament. You have, according to these people, they say that in the next few hours or so, if they don't hear the news that Mr. Gotabaya has already resigned from his position, they will lay siege to the new parliament. They will try and take over the new parliament. But in the next few hours, it's going to be very crucial if they're going to lay siege to the new parliament as well. So that is something that they're being, they are planning at the moment. In reporting outside the Secretariat in Colombo with camera person Kumar, Shrija for NDTV.
और संसद भवन, पुरानी संसद भवन के सामने कोलंबो में से रिपोर्ट कर रही हैं श्रीजा। और उसके बाद उन्होंने प्रदर्शनकारी जहां पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर खड़े हुए हैं वहां से भी रिपोर्ट की है। देखिए वहां की हाल। After several hours of the standoff in, right outside Ranil's office on Flower Road here in Colombo, between the protesters and all the security forces, that is the Army, Air Force, Sri Lankan police, including the Special Task Force. Now the protesters have once again managed to breach the heavily guarded Prime Minister's office, Ranil. They have all, in fact, breached the security. They've managed to enter. Now this is yet another political structure, the fourth political structure that's become a tourist spot. It's completely been captured by the anti-government protesters. Did you step inside Ranil's office? Yeah. After the 1948, we hoped we get the independence, but this is our actual independence after 74 years. That Aragaleta, Jai Viva! How does it feel? We saw for hours together. We saw hours together tear gassed, and then people were tear gassed, and they were the rounds were fired in the air, and we saw people running helter skelter. And now people have managed to breach the security. Yeah, this is the strength of the young crowd. Most of the people, they are facing the tear gas and the water pressure from the government. But all the three forces and finally they given the support for our young crowd. That is why we come to the Prime Minister office. This is the answer given by the Sri Lankans out here. They have captured the entire office, Prime Minister's office. Now, just about few, months ago, that is, we at NDTV had interviewed Mr. Ranil at this very office. And now what we see here is the Sri Lankan citizens that have completely taken over this particular political structure. It does, of course, say Prime Minister's office. Just about that, you can see several of the people perched atop. In fact, they have hoisted the Sri Lankan flag. You can see several of them that they claim this as the victory, as the freedom after 1948. But it's, of course, a little unpredictable at the moment if you're asking in terms of what next, what's going to happen next. Of course, we see that with the Prime Minister Ranil Wickremesinghe saying that he's the acting president. Will the protesters end it here? Well, they say until Ranil goes, or Gota goes for that matter, they will not end any of this. In Colombo, with camera person Kumar, Shrija for NDTV. के इस माहौल में लगातार रनिल विक्रमसिंघे के दफ्तर के बाहर प्रदर्शनकारी जुटे हुए थे और इस सब के बीच में उनको हटाने के लिए सुरक्षा बलों ने बल का प्रयोग भी किया है। आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसमें हमारी साथी श्रीजा भी फंस गई और वो भी वाटर कैनन और आंसू गैस का शिकार हुई। Multiple rounds of protests, multiple rounds of tear gas is being shelled at the moment outside Ranil's office. Bloody Ranil, go home! This Bloody Ranil, after go home! Don't do! Sorry. No, it's fine. You want? Rija. Oh my God. Where's Jana? Where's Jana? She has a goggle.
atmosphere prevails outside Ranil Wickremesinghe's office. Now he's become the acting president. He has informed the public, he's informed Sri Lanka that Gotabaya Rajapaksa has left the country. Right now, this what you see at the moment is where people are being tear gassed. Tear gas shells are being used. There are various forces in terms of the force. Air Force is there. The security in terms of the security has been doubled at the moment right outside Ranil Wickremesinghe's office, and the security personnel have been beefed up. और हमारे साथी सीनियर एडिटर फॉरेन अफेयर्स कादम्नी शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, और इसके बाद हम चलेंगे वाइस एडमिरल रिटायर्ड अनूप सिंह के पास भी, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कादम्नी, आपके पास भारत किस तरीके से, भारतीय विदेश मंत्रालय किस तरीके से देख रहा है श्रीलंका के हालात को? देखिए, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जो भी बयान आए थे काफ़ी संतुलित और बहुत एक फाइन लाइन ट्रेड करने वाले बयान थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि श्रीलंका के लोगों के साथ हैं, तो ये बहुत बिल्कुल साफ कर देता है कि भारत कहाँ पर खड़ा है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ ये है अभिषेक की अभी तक जितनी मदद पहुँची है, फौरी तौर पर जो भी मदद पहुँची है, चाहे वो तेल की मदद हो, गैस हो, यूरिया हो, दवाइयाँ हो, मिल्क पाउडर हो, ये सब भारत की तरफ से ही गया है। भारत ने कई बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन भी एक्सटेंड की है श्रीलंका को। तो लगातार मदद जो है वो न सिर्फ जहाज़ों के जरिए बल्कि दूसरी जगहों से इस तरह की रोज़मर्रा की ज़रूरी जो चीज़ें हैं, एसेंशियल आइटम्स है, उसको खरीदने के लिए भी भारत लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड कर चुका है। तो भारत वहाँ पर काफ़ी मेहनत कर रहा है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि कई प्रकार के र्यूमर्स भी चल पड़े। जब आज गोटाबाया राजपक्षे करीब सुबह 3 बजे माले पहुंचे तो उस समय ये एक अफवाह चल पड़ी कि भारत ने मदद की है। भारत ने साफ साफ इसका खंडन किया। वहां पर जो हाई कमीशन है भारत का, उसने कहा कि भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है, भारत ने ये सब नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर मदद जो है वो लगातार भारत हर प्रकार से कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल श्रीलंका के लिए अभिषेक ये है कि आखिर कोई भी देश कितने वक्त तक मदद करेगा। ये ज़रूर है कि एक साफ फर्क जो है वो नजर आ गया है भारत और चीन के अप्रोच में। राजपक्षे परिवार को हमेशा चीन के काफी करीब माना जाता था, उनके वक्त में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुए, लेकिन उसका नतीजा जो है आज पूरी दुनिया देख रही है। तो एक पूरे साउथ एशिया के लिए ये बड़ा एक सबक जरूर है। लेकिन उसके बाद सारे यहाँ जो क्षेत्र में देश हैं उनको साथ आना होगा और एक सरकार वहां पर होना जरूरी है ताकि वहां पर IMF वगैरह से निगोशिएट कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया कादम्नी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे साथ अब वाइस एडमिरल रिटायर्ड अनूप सिंह जी भी जुड़ रहे हैं। जो सवाल या जो बात कादम्नी कह रही थी कि वहाँ पर चीन की जो दखलंदाजी थी उसके क्या मायने हैं, और भारत की सुरक्षा के लिए अनूप सिंह जी किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि पड़ोस में अगर तांडव होता है तो आप सुख और चैन से नहीं बैठ सकते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा। अगर पड़ोस में तांडव होता है, जैसे हमारे नेबर के घर में अगर आग लगी है तो आप कैसे सुख से जी सकते हैं? आप ताली तो नहीं बजा सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर एक देश, पड़ोसी देश, और वो भी छोटा आइलैंड नेशन, केवल 20, 25 या 30 मील दूर है हमारे से, तो भारत को हर कदम वो उठाना पड़ेगा एज ए डेमोक्रेसी जो उनकी जनता के हित में है और उसी के साथ हमारे हित में। अभी बरसों से श्रीलंकन लीडर्स चीन के आगे हाथ तो नहीं फैला रहे थे, अपने आप उनके हाथ, और उनको लगता था कि हमारी इकोनॉमिक दशा बहुत अच्छी हो रही है चीन के कारण, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतनी तेजी से हो रहा है कि वो कभी सपने में नहीं सोच सकते। और हम लोग ये कहा करते थे, 2012 में मुझे याद है मैं गोल्ड डायलॉग के लिए गया था, और उस वक्त श्री गोटाबाया राजपक्षे वॉज डिफेंस सेक्रेटरी, और महिंदा राजपक्षे आपको मालूम है डिफेंस सेक्रेटरी मीन्स डिफेंस मिनिस्टर, और महिंदा राजपक्षे उनके ब्रदर वॉज द प्रेसिडेंट। एंड मुझे याद है कि गोल्ड डायलॉग के अंदर जब डिफेंस सेक्रेटरी की बारी आई बात करने की, तो उन्होंने बहुत एक टंग इन चीक स्टेटमेंट बनाई थी पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कि हमने हम्बन टोटा बनाने के लिए हमें कुछ देश ब्लेम करते हैं कि केवल चीन के पास आप क्यों जाते, और ऐसी टंग इन चीक स्टेटमेंट उन्होंने बनाई थी।
कि हम बाय द वे सबसे पहले भारत के पास आए। इसमें कुछ सच भी है। 2006 में उन्होंने भारत को कहा था कि आप हम्बनटोटा में पोर्ट बना दीजिए हमारे। हमने पहले कुछ कहा नहीं, उसके बाद डिक्लाइन कर दिया था कि ये सेंसलेस आइडिया। दूसरी चीज, जिस तरह की फाइनेंसिंग वो चाहते थे वो हम नहीं कर सकते थे, हमारी प्राइवेट कंपनी में। अब देयर आर नो फ्री लंचेस इन सो फार एज चाइना इज कंसर्न्ड। आप देख रहे हैं कि 8 to 10 बिलियन डॉलर्स की उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने किसी हित के लिए की, और उसमें से केवल 350 मिलियन डॉलर फेज 1 हम्बनटोटा का जो बनाया था उसकी डेट सर्विसिंग श्रीलंका ना कर सके। हम यही कहते थे अगर तुम EMI अपनी पे नहीं कर सकोगे तो किसी दिन चीन उस चीज को छीन ले, जो 4 साल पहले हो गई। तो चीन ने 1.12 बिलियन डॉलर्स के लिए 99 ईयर्स के लिए हम्बनटोटा अपने पास रखे। दिस इज कॉल्ड द वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ चेक बुक डिप्लोमेसी। तो श्रीलंका को तब भी थोड़ी कम समझ में आई। अब ये कुछ तो होना ही था। डेट टू GDP रेशियो इस वक्त दुनिया में श्रीलंका की इतनी बुरी हालत है कि दे कैनॉट सस्टेन, दे कैनॉट इवन इम्पोर्ट ऑयल फॉर देमसेल्फ। और जो कुछ भारत ने किया है, आप मुझे एक एग्जांपल दीजिए अगर चीन ने उसका 5% भी किया हो, चाहे वो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट नहीं किया हमने उनको असिस्टेंस दी, चाहे रिफाइंड प्रोडक्ट्स, चाहे क्रूड ऑयल। जब कभी किसी मर्चेंट शिप को आग लगी और वो डूब रहा था श्रीलंकन वाटर्स में, कौन गया सबसे पहले? भारत की नौसेना और भारत की कोस्ट गार्ड। कहां था चीन जो बोलता है हम इंडियन ओशन में इतनी बड़ी तादाद में प्रेजेंस। तो ये चीजें श्रीलंकन्स को जो इतने सालों खुश रहे थे कि चीन ने जो करके दिखाया और कोई नहीं कर सका और भारत तो हमें हेल्प नहीं कर रहा, अब देखिए कौन कौन उनकी हेल्प के लिए आया और बिना अपने ट्रम्पेट ब्लो किए। सिंह साहब, बिल्कुल सिंह साहब, एक और बात है, चीन की मौजूदगी है तो क्या वहाँ पे जो फौज है और जिस तरीके से वहाँ पर फौज के ऊपर कई सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि राजपक्षे को भगाने, तो फौज का किस तरीके का रुख रह सकता है? क्योंकि और ख़ास करके वहाँ का नेवी का भी, क्योंकि अब सारा कुछ भारत और श्रीलंका के रिश्तों में बहुत कुछ ऐसा हो रहा होगा जो चीन को भी नागवार गुजरेगा। और हम सबको पता है, ये हम इसके साथ साथ परिवार की सरकार के का एक ग्राफिक भी दिखा रहे हैं जिसके बारे में आप बात भी कर रहे थे कि पूरी फैमिली में ही सब कुछ बटा हुआ था, पूरा पावर। तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि चीन ने कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर्स या परमानेंट जगह बना लिए हैं, स्थायी जगह बना लिए हैं श्रीलंका के अंदर। देखिए, कई साल पहले मैं बात कर रहा हूँ 2007-8 के करीब, ये सुनने में और कुछ दिखने में भी आया था कि श्रीलंका के एक तट पे जो हमारे नज़दीक था, कुछ विलेजेस में चाइनीज आके बस गए। अब बसने के लिए वो सब नाम के वास्ते सिविलियन ही थे और फैमिलीज भी थी कि चाइनीज इंपोर्ट्स लेके उनका कुछ लोकली बना रहे थे और कुछ बेच रहे थे। इस चीज के अंदर सोवरेनिटी की काफी बुरी हालत हो सकती है। हम इसीलिए अपने दोस्त अफ्रीकी देशों को भी बताते हैं कि सतर्क रहें, कोई फ्री लंचेस नहीं हो। अब ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसके पास कोई सी पोर्ट नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा अफ्रीका में। वहाँ पे कुछ 3-4 बिलियन डॉलर्स के खर्चे से चीन ने एक बहुत बड़ी रेल सेवा बना दी थी बिना पैसे। इसका ये थोड़ी ना मतलब है उन्होंने फ्री जाके बना दिया, PRI के नाम पे, बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंदर बना दिया। हर चीज का वो हिसाब नहीं। और एक सबसे बड़ी चीज अभिषेक जी, जो कई लोगों को और कई देशों के लीडर्स को भी, डेवलपिंग नेशंस के लीडर्स को भी नहीं समझ में आता, ये जो चीन से जो चेक बुक डिप्लोमेसी चला रही है। जब चीन बोलता है कि हम सॉफ्ट लोन दे रहे हैं आपको 2% पे, 3% पे, लोगों को समझ में नहीं आता कमर्शियल बोरिंग्स में लाइबोर प्लस लंदन इंटरनेशनल बैंक रेट प्लस सॉफ्ट लोन वो 10-12% पे जाके पड़ा। कौन उसकी EMI चुकता कर सकेगा? डेट सर्विसिंग नहीं हो रही इनसे, और हमें मालूम था यही हालत है। काफी इनको बताने की कोशिश की, जो ट्रैक 2 डायलॉग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, और कौन समझे। और जो आपने परिवारवाद का
बिल्कुल ग्राफिक दिखाया वो बिल्कुल सही है। मुझे याद है जब हम्बन टोटा को इनॉग्रेट करने के लिए चीन के कोई कुछ बड़ी हस्तियां आई थी, श्री महिंदा राजपक्षे जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे वहां पे खड़े हुए स्माइल कर रहे थे कि देखिए हमारे देश की इतनी डेवलपमेंट हो रही। हम हिंदुस्तानी ये बोल रहे थे, सदियों से देखा गया है कि आप बहुत फॉर्चुनेट हैं कि कोलंबो ईस्ट वेस्ट रूट पे बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। हम्बन टोटा में कौन सा जहाज जाएगा बंकरिंग करने, फ्यूल लेने या एक्सपोर्ट करने? हम्बन टोटा फेज 1, अब फेज 2 भी बना दिया है चीन ने अपने पैसों से। उसके अंदर हम्बन टोटा फेज 1 में मैं गया था 2012 में गोल्ड डायलॉग के टाइम, केवल इंडियन एक्सपोर्ट कार्स जो गई थी रोरो फेरीज के साथ, जो कार फेरीज लेके जाती है छोटी, वहां पे अनलोड की गई 100-150 कारें पड़ी हुई थी जो अफ्रीकन नेशन के लिए एक्सपोर्ट के लिए थी, और वो लोग वेट कर रहे थे कभी कोई इंटरनेशनल फेरी आएगी उनको पिकअप करेगी। और कोई ट्रेड ना जहाज नजर आ रहा था ना कोई डेवलपमेंट नजर आ रही थी। ये चीन ने अब 99 ईयर्स के लिए ले लिया है, आगे आगे देखिए आप क्या करते हैं। और हमें इस चीज को नोट करते हैं, हम अपनी सिक्योरिटी बड़ी अच्छी तरह से निभा सकते हैं। बिल्कुल हमारी ज़रूरतें जो हैं वो सुरक्षा की ज़रूरतें बड़ी हैं वहाँ पे। माफ़ी चाहता हूँ अनूप सिंह जी, थोड़ा सा वक्त की कमी पड़ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ वक्त निकाल कर जुड़ पाए। आपने चीन का जो रोल है श्रीलंका के अंदर और किस तरीके से भारत को बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पड़ोस में अगर तांडव मचा हो तो आप ताली नहीं बजा सकते, ना ही आप खुश हो सकते हैं। भारत और श्रीलंका का एक पुराना इतिहास है और भारत के एक प्रधानमंत्री की जान गई है श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप के बाद। वो एक इतिहास भी हमारे साथ। और बात हम थोड़ी देर बाद ब्रेक के बाद बात करेंगे जुबैर की। ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक और पत्रकार जुबैर की मुश्किलें क्यों बढ़ रही हैं, ब्रेक के बाद। तो ऑल्ट न्यूज़ के जुबैर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि उनके ऊपर जितनी भी FIR की गई हैं उन सब में धाराएं तकरीबन एक हैं। अब तक 6 मुकदमों की बात सामने आई है और अब इसकी जांच SIT को दे दी गई है। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ सिर्फ उत्तर प्रदेश में कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी जांच के लिए एक SIT बना दी गई है। जांच IG लेवल के अधिकारी करेंगे। हमने यूपी में जुबैर के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों की जांच की तो हमने पाया कि सभी मुकदमे धारा 153A और 295A के तहत दर्ज हैं। धारा 153A उन लोगों पर लगाई जाती है जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। धारा 295A उन लोगों पर लगाई जाती है जो धार्मिक भावनाएं आहत करने का कृत्य करते हैं। अब जरा जुबैर के खिलाफ दर्ज मामलों और उनकी जांच पर नजर डालते हैं। जुबैर के खिलाफ सीतापुर, लखीमपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और हाथरस में 2 मुकदमे दर्ज हैं। जुबैर की गिरफ्तारी के बाद 4 जुलाई को हाथरस में जुबैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शिवलिंग की तस्वीर ट्वीट करने को लेकर FIR दर्ज हुई। हाथरस कोर्ट से पुलिस के आग्रह पर हुआ जुबैर को कोर्ट में पेश करने का वारंट। कल जुबैर को हाथरस कोर्ट में पेश किया जाएगा। जुबैर को सीतापुर मामले में अंतरिम जमानत मिल चुकी है। लखीमपुर मामले में गुरुवार को जुबैर की बेल पर सुनवाई होनी है। गाजियाबाद में भी पिछले साल जून में एक बुजुर्ग से मारपीट के वीडियो को ट्वीट करने को लेकर जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज है। गाजियाबाद के FIR में जुबैर के साथ पत्रकार राना अयूब और सबा नकवी भी आरोपी हैं। जुबैर के वकील हाथरस में दर्ज 2 मुकदमों पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इनमें से एक मुकदमा तो अभी 4 जुलाई को लिखा गया है, तब तक जुबैर जेल में था। जुबैर के वकीलों का कहना है कि यूपी पुलिस जानबूझ के नई FIR सामने लेके आ रही है ताकि जुबैर को ज्यादा दिन तक जेल में रखा जाए। सहयोगी करण पात्रा के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और बात NCB के ड्राफ्ट चार्जेस की कि जिसके मुताबिक अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स की लागत लगाई गई थी और इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक को भी एक्यूज या आरोपी बनाया गया है। 32 लोग उसमें उनके साथ शामिल बताए गए, जिनमें ड्रग्स सप्लाई बाकी की चीज़ों के इल्ज़ाम हैं। रिया सुशांत सिंह राजपूत को गांजा पहुंचाती थी, ये NCB का इल्ज़ाम है। हमारे साथ ये सुनील सिंह जुड़ रहे हैं। सुनील, बताएं इन ड्राफ्ट चार्जेस का मतलब क्या है? क्या रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कौन कौन सी धाराएं हैं और उन धाराओं में किस किस्म के दंड की व्यवस्था है? देखिए अभिषेक, ये
सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद जब रिया चक्रवर्ती के फोन से कुछ चैट बरामद हुए थे, उसमें ड्रग्स की बातें की गई थी। उसके बाद एनसीबी ने मामला दर्ज किया था और उसमें 35 गिरफ्तारियां हुई थी। तो उसमें चार्जशीट तो पहले फाइल हो चुकी थी। अब जो है कि एनसीबी ने ड्राफ्ट चार्जेस जो है कि कोर्ट में पेश किया है। ड्राफ्ट चार्जेस का मतलब यह है कि अब तक की जांच में इस अपराध में शामिल जो भी आरोपी हैं, उनकी अपराध में भूमिका और उनके खिलाफ मिले सबूतों के आधार पर सभी पर अलग अलग आरोप जो है, क्या आरोप बनते हैं, वो ड्राफ्ट चार्जेस के तहत दिया जाता है कोर्ट में, जिसमें कि बहस होगी। जो बचाव पक्ष है वो इसमें अपनी बहस रखेगा, दलीलें रखेगा कि ये चार्जेस उनके मौकिल पर बैठता है या नहीं बैठता है। और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कि चाहेंगे कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन इसी दौरान फाइल करें। और जैसा कि क्षितिज प्रसाद जो है एक आरोपी हैं, उन्होंने अपने वकील के जरिए अपना डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा भी दिया है। बहरहाल हम बात करें रिया चक्रवर्ती की, तो रिया चक्रवर्ती के बारे में जो उनका रोल उभर कर सामने आया है इस ड्राफ्ट चार्जेस में देखें तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि रिया चक्रवर्ती सैमुअल मिरांडा और अपने भाई शोविक चक्रवर्ती और दीपेश सावंत के जरिए ड्रग्स मंगवाती थी और उसके लिए पैसे भी देती थी। ड्रग्स का मतलब यहाँ पर गांजा है, खास करके जो रिया चक्रवर्ती ने मंगवाया, और उसे फिर सुशांत सिंह राजपूत को दिया जाता था। ये आरोप लगाया गया है। और धारा जो लगाई गई एनडीपीएस एक्ट की वो 27A है। इसके अलावा 28, 20 और भी कुछ धाराएं हैं, साजिश की भी धाराएं उसके तहत है। लेकिन जो सवाल उठता है वो 27A पर ही उठ रहा है, क्योंकि जब रिया चक्रवर्ती की सेशन कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी थी तब बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की थी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने तब कहा था कि अगर कोई किसी के लिए ड्रग्स मंगवाता है अपने किसी के लिए और उसके लिए पैसे देता है तो वो जो ड्रग्स तस्करी का हिस्सा नहीं हो जाता है। और मान लीजिए इसमें से जो वाकई में ड्रग तस्कर हैं, सबूतों के अभाव में वो कुछ कम सजा पाते हैं या साल 1.5 साल में छूट जाते हैं, तो 27 से जिस पे और बाकी पे लग जाएगा, जिसका उतना गंभीर तो भूमिका नहीं है, तो उसके लिए कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा 20 साल की सजा का प्रावधान है। तो ये मुनासिब नहीं है। और इसी आधार पर रिया चक्रवर्ती को बेल भी मिली थी। हालांकि उनके भाई शोविक चक्रवर्ती का बेल इनकार कर दिया था हाईकोर्ट ने, क्योंकि उनकी भूमिका ज्यादा गंभीर थी। वो ड्रग सिंडिकेट से जुड़े लोगों से मिले हुए थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि एक चुनाव हारने वाला नेता क्यों घर घर जाकर पैसे मांग रहा है। वक्त एक ब्रेक का। और बात भारत के लोकतंत्र की, देश की बात में भारत के लोकतंत्र में आज मध्य प्रदेश के नीमच की कहानी है, जहां पर एक सरपंच चुनाव चल रहा था जिसमें एक शख्स ने चुनाव हार गए। लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है कि कोई ना कोई जीतता है और कोई ना कोई हारता है, लेकिन जो हारे हैं वो अब घर घर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। कैमरे के उस पार जनता है, कैमरे के दूसरी तरफ नेताजी घर घर जा रहे हैं वोट नहीं नोट मांगने। अरे अरे, मतदाताओं से नहीं, अपने ही नोट जो उन्होंने मतदाताओं को वोट के लिए दिए थे। वोट दिया तो जीत गया, आला का पैसा लेगा तो पैसा दाम बस यो है। खाली चेताव वाले आया बात फिलहाल चेताव वाले आया की बात है। वोट जीता कैसे अरे वोट दिया आया भले नहीं दिया, वोट दिया या नहीं दिया, मैं चेताव वाले आया है। नीमच जिले के देवरान में सरपंच पद के लिए राजू दायमा खड़े थे। पोस्टर बताता है वो योग्य, शिक्षित, सेवाभावी, अनुभवी युवा वगैरह वगैरह हैं। चश्मे का निशान था। अब देखिए ना, पैसे बांटते वक्त पुलिस प्रशासन का चश्मा उन्हें देख नहीं पाया। आरोप है कि चुनाव हारने पर उनके कार्यकर्ता गांव वालों से वसूली करने पहुंच गए। वसूली का वीडियो वायरल हो गया, तब पुलिस के चश्मे में वो दिखे हैं। अब जाकर मामला दर्ज हुआ है। देखिए, एक जो थाना रामपुरा क्षेत्र में ग्राम देवरान जो ग्राम पंचायत क्षेत्र है, उसके यहाँ पर इस तरह की घटना सामने आई है, जिसमें मारपीट के बाद इस बात की भी एक वीडियो वायरल हुआ है। प्रथम दृष्टया मारपीट की गई है, उस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और उस जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी अलग से जांच की जाकर उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, चुनाव आचार संहिता का जो उल्लंघन है, उस तहत जो है आचार संहिता में जो जो धाराएँ हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है, उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। कृपया अब निर्वाचन प्रक्रिया और प्रशासन की मुस्तैदी पर सवाल न उठाएं। वैसे नेताजी ने महज 1.5-2 घंटे में अपने 4.5 लाख रुपए वसूल लिए। आखिर वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप तो मचाना। हरिशंकर परसाई की एक कहानी है, एक लड़की 5 दीवाने। उसमें चौथा दीवाना अपनी प्रेमिका को चूल्हा फूंकते हुए देखकर कहता है,
जोर से कि अरे हमने तो हजारों रुपए चूल्हे में फूंक दिए हैं, किसी को जरूरत हो आए मांगे, 1000-2000 तो हम यूं ही दे देते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ नेताजी भूलते नहीं। आखिर हिसाब प्रेम में भी तो होता ही है, और यहाँ तो वैसे भी नेताजी का प्रेम 5 साल बाद ही छलकता है। नीमच से अपने सहयोगी मनीष और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र से गुजरात तक बहुत कुछ है, पानी पानी और हालात हैं बहुत खराब। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद इस कहानी पर हम नजर डालें। और बात लगातार हो रही बारिश की। गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश से हाल बेहाल है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसका प्रकोप है। बारिश और बाढ़ के हालात में ज़्यादा हैं। महाराष्ट्र में जहां पर तकरीबन 80 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है कई इलाकों में। गुजरात में भी हालात ख़राब हैं। बारिश और बाढ़ से अस्पतालों में भी पानी घर घुस चुका है। कुछ जगहों पर कई गांव डूबे हैं और कई जगहों पर संपर्क टूटा हुआ है। मुंबई और महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश से छोटी नदियां और नाले में बाढ़ है। मुंबई से सटे वसई में पहाड़ पर भूस्खलन से 2 की मौत हो गई है। इस मानसून में अब तक राज्य में 89 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। गुजरात में राजकोट और नवसारी में रोजमर्रा की जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है भारी बारिश के चलते।